Okay, so let's start with the session. हमें आज ये खत्म करके hopefully LPP भी खत्म करना है. चलो. Okay, so kids, you finished the 2 exercise. Now let's go to the next one. हमने last time truth table बनाना सीखा था. अब यहाँ कुछ और देखेंगे. Here we'll see quantifiers. Then we'll see quantified statement. Then we'll see duals. Then we'll see negation of a compound statement. And then we'll see converse, inverse and contrapositive of implication. ये बोर्ड एग्जाम में काफी रेगुलरली आता है. कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. अभी क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? वेल किड्स, नॉर्मली जहां तक क्वांटिफायर्स का सवाल है, क्वांटिफायर्स दो टाइप के होते हैं. क्वांटिफायर्स दो टाइप के होते हैं और इनका सिंबल कुछ ऐसा है. एक कुछ ऐसा होता है और एक कुछ ऐसा होता है. ये क्या है आपका? आई थिंक वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स इन नॉर्मल क्लासेस आल्सो. ये आपका है फॉर ऑल, है ना? इसको बोलते हैं फॉर ऑल और इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन या देयर एग्जिस्ट या एटलीस्ट वन. हाँ क्या ना किड्स, है ना? देयर एग्जिस्ट और एटलीस्ट वन. So for all is known as universal quantifier. Universal quantifier. And there exist or for some, इसको for some भी बोलते हैं या for some या कभी कभी at least one भी बोलते हैं. At least there exist at least one या at least one, whatever. ओके और इसे कहा जाता है बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स. सो किड्स, बेसिकली दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं. एक को कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक को बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो द वर्ड्स देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल are known as quantifiers, by the way. Okay, there exists, is called existential quantifier and denoted by epsilon, ulta epsilon I would rather say. And for all is known as universal quantifier denoted by for all symbol. Is it okay? Yes, sir. Statements involving quantifiers are called quantified statements. What does it mean? I give an example. If I ask you a question, x plus 3 equal to 9, and my question is this a statement? Is this a logical statement? Open sentence. It's an open sentence, huh, kids? Yes, sir. Yes, sir. Because if x is 6, then it is true. But if x is not 6, then it is not true. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. But if suppose I do something, all right, there exists x belonging to natural number such that x plus 3 is 9. Now, is it a statement? Yes, sir. Is it a statement? Yes, sir. Yes, sir. Only one now. There exists x belonging to natural number such that x plus 3 is 9. Now, isn't that true? Yes, sir. So it becomes a statement. Rather, I would call it as a quantified statement. Why quantified statement? Because we use quantify. We have quantifier. We have used quantifier. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So many sentences which are not a statement can be made into a statement with the help of quantifiers. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. इसको कहा जाता है quantified statement, wherein we are using quantifiers. By the way, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था. For all x belonging to natural number, x plus 3 is equal to 9. Now this is true or false? False. 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 Still it is a statement, हाँ क्या नहीं? Yes. यहां पर भी मैंने देखो, जब वो अकेला था ना तो वो स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन मैंने इसको क्वांटिफायर यूज करके स्टेटमेंट बना दिया. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. डिड यू अंडरस्टैंड? Sir. Yes. या But isn't the second one an open sentence? कैसे? Acha, so I'm asking, like, if you use a quantifier, then
it is always a statement ऐसा. या इसलिए स्टेटमेंट बना दिया ना मैंने. Okay. It should give you either true or false. That's it. अच्छा, understood. Yes sir. ठीक है ना. Yes sir. Yes sir. हाँ चलो. उसके बाद डुअल्स की बात करते हैं. ये टाइम पास है मतलब. Now duals has been removed from your syllabus, huh? From your board syllabus. It's removed. Is removed. Board syllabus से it is removed. Board is removed? नहीं. Board syllabus it is removed. Okay, but I'll speak क्योंकि हमको काम आएगा. At least JEE और CET में. क्या होता है कुछ नहीं यार. Suppose if I give you P और Q. तो इसका डुअल पता है क्या है? इसका डुअल. इसका डुअल है खाली एक ही काम करने का आपको. क्या काम करने का? डुअल स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है. खाली एक ही काम करो. क्या? रिप्लेस एंड विथ और विथ एंड टी विथ C. एंड सी विथ E. टी. दैट्स इट. ये आपका हो गया डुअल ऑफ अ स्टेटमेंट. तो इसका डुअल क्या हो जाएगा? इसका डुअल हो जाएगा P एंड Q. चलेगा? Yes sir. ओके. सो डुअल कुछ नहीं है. तो कुछ करना क्या है बता देता हूं. खाली याद रख लो. Or becomes and becomes or. Next, or will become and also T will become C. T will become C and will become or. Is it okay? Yes sir. और कुछ नहीं करने का. So if I say negation of P or not of Q, तो इसका डुअल होगा negation of P and negation of Q. Or with and with or. T with C, C with T. That's it. और कुछ नहीं चेंज करना है आपको. Is it okay? Yes sir. P and C are just letters, no? अरे तू हमेशा ऐसे क्यों करता है यार? P and Q are statements ना. तुझे तो बताया Yes, था sir. लास्ट क्लास में. So opposite करने का ना डायरेक्ट. हाँ खाली और. अरे क्या है तेरे को समझता नहीं. मैं क्या बोला? एंड को और को एंड, टी को सी को टी. और क्या बताऊं? उससे ज्यादा क्या बताऊं तेरे को? क्या है ऐसा? अरे कैसा रे तू आर्यन. चलो ठीक है. या इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सो किस ऐसे यू नो सपोज ऐसे नेगेशन ऑफ P एंड T. चलो इसका फिर डुअल क्या होगा बता दो. नेगेशन ऑफ P क्या लिखूं? क्या और लिखूं? C. और और C. That's it. और कुछ नहीं करना बस. ये आपका डुअल हो गया. उसके बाद नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. चलो देख लेते हैं. अरे कुछ नहीं, देख लो. If I say negation of P and Q, now this is same as negation will go inside, negation of P and will become or, and then negation of Q. Did you understand this? Yes. इसको बोलते हैं negation of conjunction. Similarly, negation of disjunction भी पता होना चाहिए. Okay. यहाँ पर ना उल्टा लिखा है रे. यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर. Is it okay? Yes sir. Okay, so मैं कर लेता हूँ. Negation of P or Q is nothing but negation of P and negation of Q. Is it okay? Is it okay? Yes sir. Okay, आपको उल्टा भी आना चाहिए. उल्टा मतलब क्या है? अरे उल्टा ही काम आएगा. सपोज अगर negation of P है and negation of Q, you can write the second negation common. तो अंदर क्या आएगा? P और Q. Do you get me? Yes sir. If I say negation of P or negation of Q, I can take negation common. So what I get inside? P and Q. चलेगा? Yes sir. तो हमें ये पता होना चाहिए. ये I hope ये ठीक है kids. Yes. चलो ठीक है. आगे तो किस बाय द वे ये जो मैंने आपके सामने किया है ना, नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, उसको कहा जाता है, एंड इसको भी कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. बहुत बार सुना है ना ये वर्ड डी मॉर्गन्स. Yes. Yes sir. इसको भी डी मॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं. ये आपका नेगेशन हो जाता है. अच्छी बात है. नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, मतलब इंप्लाइज. इसका नेगेशन ऑफ P implies Q is P and not of Q. एक्चुअली आपको बताता हूं किड्स, अगर हम टेबल बनाएंगे ना, थ्रू टेबल यू विल फाइंड दैट P implies Q is logically equivalent to not of P or Q.
रिमेंबर ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है दोनों. Both are logically equivalent statement. So don't you think if I say negation of P implies Q, so it is same as negation of this entire thing, right side? हाँ क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Now this negation will go inside become negation of P, or will become and negation of Q हो जाएगा. चलेगा? Yes, sir. Or is negation of P becomes P. and negation Q. समझा क्या? Yes, sir. Now by heart. ये सब by heart ही करना है आपको. So negation of P implies Q is P and a negation of Q, P and negation of Q, P and negation of Q. और ये भी by heart कर लेना. Yes. Okay? ये कोई लोग लेट आते हैं ना यार, बहुत इरिटेट होता है मुझे यार. ठीक है. So negation of P implies Q is P and not of Q. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. हाँ ये भी याद रख लो. ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है. P double implies Q is P implies Q and Q implies P. तो यहां देखना P double implies Q का it's same as logically equivalent to P implies Q and Q implies P. अभी अगर आपको उसका नेगेशन फाइंड करना है तो देखते हैं इसका नेगेशन क्या होगा. And then we'll by heart the final answer. You can see the answer in front of you, but see. Now, negation of this entire thing, ठीक है? Now, P implies Q क्या होता है? Not of P or Q. चलेगा? Yes, sir. And this become not of Q or P. Is it okay? Yes, sir. Now, अंदर जाएगा तो negation of P or Q. After that, your and will become or negation of Q or P. Do you get me? Yes, Yes, sir. sir. Now this goes inside become negation P will become P. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Or will become And and negation Q. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Next, अंदर जाए negation becomes Q. Or will become and become negation P. Is it okay? Yes, sir. वही आंसर आपके सामने दिया हुआ है, देख लो. इसको LBH करना पड़ेगा आपको और इसको भी LBH करना पड़ेगा आपको. So P double implies Q is P implies Q and Q implies P. तो उसका नेगेशन होगा P and not of Q और Q and not of P. P and not of Q or Q and not of P. P and not of Q or Q or not of P. P and not of Q or Q and not of P. ये आप लोग बाय हार्ट कर लो. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, इनवर्स. कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड इनवर्स. कुछ नहीं यार. अगर P implies Q है ना, एक स्टेटमेंट गिवन है. सपोज इफ सपोज ऐसे ना, इफ सपोज ऐसे एक कोई भी स्टेटमेंट है. सपोज P is that Vansh is a cricketer. Q Anushka Sharma is a wife. Okay, so this suppose I write P implies Q. इसका मतलब क्या होगा? If Vansh is a cricketer, then Anushka Sharma is a wife. Okay, तो ये स्टेटमेंट ये हो जाएगा ना P implies Q है ना, कि if then. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो इसके तीन चीजें एग्जाम में पूछते हैं. एक है कॉन्वर्स, दूसरा है कॉन्ट्रापोजिटिव और तीसरा पूछते हैं इनवर्स. तो हमें पता होना चाहिए. ओके, तो P implies Q का कॉन्वर्स क्या होता है? P implies Q का कॉन्वर्स होता है Q implies P. कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P. और इनवर्स होता है नॉट ऑफ P implies नॉट ऑफ Q. तो आपको ये तीनों याद रखना पड़ेगा. इसका कॉन्वर्स होता है Q implies P, कॉन्ट्रापोजिटिव होता है नॉट ऑफ Q implies नॉट ऑफ P, और इनवर्स होता है इसको उल्टा कर दो. सो फॉर एग्जांपल, इफ द स्टेटमेंट इज गिवन इफ Vansh is a cricketer, then Anushka Sharma is a wife. तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? If Anushka Sharma is a wife, then Vansh is a cricketer. कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? If Anushka Sharma is not a wife, then Vansh is not a cricketer.
Inverse क्या होगा? If Vansh is not a cricketer, then Anushka Sharma is not a wife. Did you understand? Yes, sir. So it carries 3 marks in your board examination. The statement will be given, just find converse, contrapositive and inverse. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you will have to remember, okay, converse, contrapositive and inverse. और एक बात मुझे बताना पड़ेगा, ये आप लोग याद ही रख लो. A statement is always logically equivalent to its contrapositive. मतलब क्या है? मतलब दोनों का लॉजिकल टेबल क्या है? क्या है? Same. सेम है. दोनों का लॉजिकल टेबल सेम है. ये याद रखना आप लोग. ठीक है, लेट्स गो अहेड. ओके, अभी सम्स है. सम्स तो यार मैं नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, फिर भी देख लो थोड़ा सा. क्या लिखा है? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्या लिखा है? इस सिंबल को कैसे रीड करते हैं? कैसे रीड करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट. There exists. Okay. There exists x belonging to set A such that x minus 8 is 1. Is that true? No. Yeah. Yes, sir. 9 minus 8 is 1 है ना? तो it is a truth value. हाँ कि नहीं? True. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हो गया. Okay. For all x belonging to A, x square plus x is an even number. For all x. So 3 का square 9. 9 plus 3 will be even number. 5 का square 25. 25 plus 5 is an even number. 7 का square 49. 49 plus 7 is 56 in even number. 9 का square 81. 81 plus 9 90 is an even number. अरे वाह, सब आ रहा है यार ये तो. 11 का square 121. 121 plus 11 132 is an even number. 12 का square is 144. 144 plus 12 is an even number. अरे वाह, it is true. हाँ ना kids? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आई थिंक ये सब अभी खुद से मैनेज कर सकते हैं, तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद देख लेना. इसका डुअल क्या होगा? P and Q और R. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes. ओके, सो चलो मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा. ये सब अभी मैं सॉल्व नहीं करने वाला, आप लोग खुद कर लेना. नेगेशन, इसका नेगेशन फाइंड करना है. तो दिस इज लाइक P एंड दिस इज लाइक Q स्टेटमेंट. एग्जाम में कैसा करना पड़ेगा? ऐसे लेट P is x plus 8 greater than 11. Q is y minus 3 equal to 6. और आपका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? P और Q. हाँ के नहीं? Yes, sir. ये स्टेटमेंट है सिंबॉलिकली. हाँ के नहीं किड्स? Yes, sir. Yes, sir. ना आपको इसको नेगेशन करना है. तो कैन आई से नेगेशन ऑफ P और Q क्या होता है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q. हाँ के नहीं? Yes, sir. तो पता है इसका नेगेशन क्या होगा? ये नेगेशन है, वर्ड्स में लिखो. क्या लिखेंगे पता है? x plus 8 less than or equal to 11 and y minus 3 not equal to 6. Is it okay? Yes, sir. पब्लिक को समझा गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये सब बचकाने हैं सब. ओके, चलो ये भी ट्राई Can you करें. go back one, sir? या Done, sir. या गुड. चलो, quadrilateral is a square if and only if it is a rhombus. So this is like P, and this statement, it is a rhombus, will become Q. तो इसका symbolical representation क्या है? P double implies Q. चलेगा? Yes, sir. ओके, तो हमें इसको नेगेट करना है, तो इसका नेगेशन हमें याद होना चाहिए. इसका आंसर है P and not of Q और Q and not of P. मैंने बोला था बाय हार्ट करना है, अगर बाय हार्ट नहीं करोगे तो फिर आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे. ओके, एंड नाउ लेट्स राइट द स्टेटमेंट. पता है इसका आंसर क्या होगा? नेगेशन क्या होगा? क्वाड्रिलैटरल is a square but, या एंड भी लिखेगा तो भी चलेगा, but it is not a rhombus or quadrilateral is a Rhombus, but it is not a square. quadrilateral is a rhombus
It is not a square. but it is not a square. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. So that's what it is. You just by heart these things, okay? So you can just solve these problems in board examination. तो ये सब खुद से कर सकते हैं आप लोग. तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. Okay. Root 2 is a rational number. Root 2 is not an rational number. Is not a rational number. Or you can say root 2 is an irrational number. चलेगा ना kids? Yes, sir. अब देखो कुछ लोग ना गड़बड़ करते हैं. कुछ लोग क्या बोलते हैं? Suppose I say Vansh is a नहीं पर स्टेटमेंट ही नहीं है को. Vansh is a क्या नहीं ठीक है. Vansh is a cricketer. तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? Vansh is not a cricketer. It is not a cricketer. Okay. तो ये तो ठीक है, तो सब लोग कर सकते हैं. Okay. कभी कभी क्या होता है पता है? कभी कभी लोग ना, सपोज मैंने बोला x plus 3 greater than 9, तो लोग पता है गड़बड़ क्या करते हैं? नेगेशन लिखा तो पता क्या लिखते हैं? x plus 3 less than 9. Now this is wrong ना kids? Yes, sir. It should be less than or Equal to. Equal to. हाँ, तो ये जरूरी है. ये सब छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं. ओके, तो हमें पता होना चाहिए. ओके, उसके बाद कुछ कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे. मैं आपको बताता हूँ मैं इसके बारे में, जहां पर लोग गलती कर बैठते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो, जब भी ऐसा एप्सिलॉन ये उल्टा रहेगा ना, देयर एग्जिस्ट, यू शुड रिप्लेस देयर एग्जिस्ट विथ फॉर ऑल. ये दोनों एक दूसरे का नेगेशन है. डू यू एग्री? Yes, sir. They both are negations of each other. Do you agree? Yes. Yes. तो आप ये भूलना मत. Can you repeat the last one? My internet. What happened? The last one you said, no, the equation you gave. Which equation I did? Like x plus 3 is greater than a number and then अरे negation. हाँ, I was saying x plus 3 greater than 9. So इसका negation is x plus 3 less than or equal to 9. Okay. ठीक है ना? Yeah. ओके, तो किसी नेगेशन पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी लोग गड़बड़ कर बैठते हैं. नाउ सपोज यू नो, आई विल टेल यू वेयर आर द मिस्टेक्स हैपेंस. यू नो, लाइक सपोज आई से यू नो, अगर सपोज ये क्वेश्चन मैंने पूछा ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो इसका नेगेशन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए. क्या करने का पता है? इस ऑल को सम से रिप्लेस करो और यहां पर एक नॉट लगा दो. यहां पर एक नॉट लगा दो. आई कैन से all natural numbers are whole numbers. I can some natural numbers Are not whole number. some natural numbers are not whole number. This is much better than you straight away writing all numbers are not whole numbers. This is not the right way. So try converting all as for some and यहाँ पर एक negation वाला term लगा देने का. Is it okay? Yes, sir. ओके. उसके बाद कभी कभी कहाँ गलती होती है मैं आपको बताता हूँ. वो पता है किस कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ना, अभी चलो ये भी कर लेते पहले. फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल. पता है इसका नेगेशन क्या होगा? चलो बताओ. There exists. एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या लिखो बताओ? N square plus n plus 2 प्लस n प्लस 2 इज not divisible by 4. नॉट divisible. नॉट डिविजिबल 5, 4. बाय 4. चलेगा? Yes. समझा ना? हाँ, sir. Yes. ओके. अब देखो यहाँ पर मिस्टेक देखो कहाँ होता है, कहाँ लोग गड़बड़ कर बैठते हैं. ओके, बी केयरफुल. अगर सपोज मैंने क्वेश्चन दिया, सम स्टूडेंट्स आर मैरिड. सम स्टूडेंट्स आर मैरिड. तो पता है कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहां भी लोग गड़बड़ कर बैठते हैं. देखो यहां पर पता है लोग मिस्टेक क्या करते हैं. सम विल से सम स्टूडेंट्स आर नॉट मैरिड, या सम विल से ऑल, क्योंकि राम सर ने सिखाया है ऑल सम सम ऑल नेगेशन है, तो लोग लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर, यहां नेगेशन लगा देंगे नॉट मैरिड. बट if you're good in English, then you will observe that all both are same statements. Read karo. Are they both same? Yes, sir. Yeah. Some students are married. कुछ
कुछ विद्यार्थी शादीशुदा है, उसका नेगेशन अगर आपने ये लिखा सारे विद्यार्थी शादीशुदा नहीं है, इसका मतलब भी तो वही होता है ना, कुछ विद्यार्थी शादीशुदा है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. सो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, दोनों एक ही है, अपेरेंटली अलग लग रहा है जब मैंने वर्ड चेंज किए, बट स्टिल दे आर सेम. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. सो इसका नेगेशन बताता हूं मैं आपको. इफ आई से सम स्टूडेंट्स आर मैरिड, द बेस्ट वे टू राइट द आंसर इज सीधा नेगेशन लगा दो. Not all students are married. स्टूडेंट्स आर मैरिड, काम खत्म. डिड यू अंडरस्टैंड? पूरा मगजमारी चला जाएगा वो कंफ्यूजन का. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. तो इसका नेगेशन में ये लगा देना. सो बी केयरफुल. ओके, तो सम स्टूडेंट्स आर मैरिड, सीधा नेगेशन, नो स्टूडेंट्स आर मैरिड, खत्म. इसका पूरा ऑपोजिट हो गया. डिड यू सी? Yes, sir. So be careful, okay? It does happen, you know, sometimes, you know, we get confused with the English words and all, okay? But ये मैं आपको बता रहा हूँ. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, chalo, good. So, Yeah. if we get a sum where, for example, it's like that domain kind of somewhere, for all values of x belongs to, for example, minus infinity to 1, फिर union to positive infinity. तो उसका negation कैसे लेंगे? तू क्या बोल रहा है अंश यार? अपने खुद से मत बात कर, मुझे पता तो चले तू क्या बोल रहा है. सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं. अच्छा, sorry, sir, microphone दूर था. If we have a sum where we have to find the negation of x belongs to negative infinity to 1, Okay. और फिर बीच में included, और फिर बीच में union 2 to positive infinity. Two So to? will the negation be between Of 1 course. and 2? इसका नेगेशन क्या होगा? 1 to 2 open interval. That will be, मतलब इसे खाली उल्टा करने का रहता है हाँ वही ना, वही तो नेगेशन हो गया ना उसका. ना? Okay, sir. ठीक है? या चलो. Can I go ahead, kids? Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ बोला रे. sir, ये जो 8th question है, हाँ इसमें भी could we do see n for n belonging to n लिखा है ना, हाँ. उसकी जगह पे n not belonging to n किया तो, क्या हुआ? n not belonging to n वहां पे स्लैश मार दिया तो. यहाँ की बात कर रहे तू? Yes, sir. ठीक, इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर ऑल n नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. तो ऐसा बोल रहा है ना? हाँ, one and the same thing हो गया. समझ आया, समझ आया. Yeah. Yes, sir. ठीक, चलो. या तो ये सब खुद से कर सकते हैं. अभी कॉन्वर्स कॉन्ट्रापोज इनवर्स सिखाया कि नहीं सिखाया आप लोग को मैंने? दिखाया ना. हाँ, तो अगर सपोज ये आपका p है और ये आपका q है, ये p implies q है, तो इसका कॉन्वर्स लिख लेते हैं. उसका कॉन्वर्स होता है q implies p, हाँ के नहीं? Yes, sir. I can say if x square less than y square, ये p और q है, then x less than y चलेगा. Yes, sir. Next is contrapositive. Contrapositive not of q implies not of p, हाँ के नहीं kids? Yes, sir. Okay, तो इसका नेगेशन क्या होगा? If x square greater than or equal to y square, then x is greater than or equal to y. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. And then inverse. Not of p implies not of q. इसका आंसर क्या होगा? If x greater than or equal to y, then x square is greater than or equal to y square. Is it clear? Yes, sir. That's it. समझा सबको? हाँ, sir. तो ये सब कर लेना. कुछ नहीं खुद Sir, से. could you come to that 8th question? Sir, so for the negation, can like what I said is correct कि फिर जो आपने बोला वही करे? मैं जो बोला वही करना. खुद का Okay, दिमाग sir. मत चला. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि खुद का दिमाग कभी कभी सही हो जाएगा, कभी गलत करोगे आप, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Correct. चलो, तो ये खुद से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें तो मैंने आपको सिखाई दी थी, तो देख लो. P implies Q का इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P और Q, मैंने आपको बता ही दिया था. उसके बाद P डबल implies Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P implies Q एंड Q implies Q. हाँ के नहीं किड्स? Q implies P. Yes, sir. ओके, नाउ ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये जो यहाँ पर और है, यहाँ पर एंड है, तो ये पूरा अंदर जाएगा. तो P और Q एंड P और R. इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. P एंड Q और P एंड R. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर उन्होंने ट्रूथ टेबल बना दिया है, जो शायद हम बना ही सकते हैं, हमने बहुत बनाया है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। खाली उन्होंने ये प्रूव करके बताया क्या, दैट P implies Q is same as not of P or Q. Do you see this? Yes, sir. और ये भी प्रूव करके बताया है, क्या प्रूव करके बताया है कि P double implies Q is same as P implies Q and Q implies P. Is it okay? Yes. अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके अभी नेक्स्ट जो सम्स है दे आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एल्जेब्रा, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, इसको कहा जाता है एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। कुछ लॉज है, ये लॉज आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। कैन आई स्टार्ट? Yes. पहले वाले लॉ को कहा जाता है इडिम्पोटेंट लॉ। क्या है? P and P is same as P. P और P is same as P. समझा क्या? Yes, sir. So T and T is T, T और T is T. समझा? Yes, sir. वो तो सच्ची बात है ना। एंड में क्या होता है? T T becomes T, हाँ के नहीं? Yes, sir. और में क्या होता है? F F becomes F, बाकी सब T, हाँ के नहीं? Yes, sir. तो सच्ची बात है। तो याद रख लो। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, P और Q सेम एज Q और P। अरे कम्यूट करना है और कुछ नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir. Associative law, P and Q and R, you can interchange the bracket, P and Q and R और P and Q and R, ये सब सेम ही है। Yes. और ऐसे भी लिख सकते हैं P और Q और R, you can interchange the brackets, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Associative law, distributive law, ये distributive law क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? ऑपोजिट होना चाहिए, एंड और ऑपोजिट होना चाहिए। तो P एंड है ना, तो अंदर जाएगा P and Q और P and R। चलेगा? चलेगा? Yes, sir. P और Q and P और R। Is it okay? Yes. Next, De Morgan's law, not of P and Q is not of P or not of Q। चलेगा? Yes. उल्टा भी लिखने को आना चाहिए ना किड्स? Yes. ओके उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिटी लॉ। में आपको बताता हूं मैं, ओके बट हाँ उसके पहले आप लोग ये देख लो। हाँ ये एड्सॉर्प्शन लॉ को मैं कभी यूज नहीं करूंगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर एड्सॉर्प्शन लॉ, कहीं हम यूज नहीं करेंगे इसको। हाँ कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। ओके कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है? P and not of P is always equal to F, P or not of P is always equal to T. You can prove this by any example. Suppose you take P as T and this is not of T. ठीक है? So T and not of T क्या होता है? F, है ना? Yes, sir. और and में क्या होता है? What happens in and? Or. T becomes T, बाकी सब F, हाँ के नहीं? Yes, sir. So did you get this? Yes. sir. So you can take any example, ये हमेशा true होता है, तो since ये हमेशा true होता है, let's not waste our time by heart. How to remember? See, you know how I remember, I'll tell you how I remember. A statement and is negation, and its negation. मैंने अपने दिमाग में फिट करके रखा है क्या and के बारे में? Whenever I look at and, I always think of T. Why I think of T? Because and में T becomes T, हाँ के नहीं? Yes, sir. So whenever I look at and, I think of T always. I Yes, sir. always think of T. Yes, sir. Next. Whenever I look at or, I always think of F, because F or F becomes F. So मैंने अपने दिमाग को ऐसे बना लिया है सोचने के लिए कि जब and होगा तो T सोचना, तब और होगा तो F सोचना, तो अगर and होगा तो T सोचना, तो T का ऑपोजिट क्या होता है? F. हाँ, और होगा तो F सोचना, F का ऑपोजिट क्या होता है? T. ऐसे मैं याद रखता हूं। ओके सो यू कैन रिमेंबर P and not of P, P and not of P, and है तो T होता है, T का ऑपोजिट F। और है, और में क्या?
P or not of P, or में F होता है, F का opposite क्या होता है? T. Did you understand? Yes, sir. This is how I remember my complement laws. You can remember your way if you have any way. That was my way. Is it okay? Yes, sir. Next, conditional law तो मैंने आपको बता ही दिया था, they are logical equivalent, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. और ये भी बताया था, ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ये तो मैंने आपको बताया था पहले भी. अब इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिटी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिटी लॉ तो बाबा रे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, हाउ टू रिमेंबर आइडेंटिटी लॉ. द बिगेस्ट टास्क इज टू रिमेंबर आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि लोग आइडेंटिटी लॉ भूल जाते हैं. तो आपके सामने तो दिया है आइडेंटिटी लॉ क्या है, बट मेरे पास एक ट्रिक है याद रखने का, तो मैं आपको बताता हूं मैं कैसे याद रखता हूं. हाउ आई रिमेंबर, so you can also remember. चलो, look at the identity law. Okay, देखो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं और मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है? चलो, can I start? Yes, sir. See how I remember. मैंने क्या बताया था? For me, and is like what? P. This is like T. This is also T. T cancel. What is the answer? P. T. Wow. Check this out. Is that true? Yes, sir. अरे वाह, सही है रे. Next. Look at this fourth one. Or for me represents what? F. F. ये भी F. FF cancel. What is the answer? P. अरे वाह, चेक करो आंसर राइट है क्या? P और F is P. अरे वाह, झक्कास है ना, राइट है ना? Yes, sir. चलो और ट्राई करते. नेक्स्ट. And is T, this is F. ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो चुपचाप इसको लिखने का बाजू में. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Is that true? चेक कर लो. Yes, sir. किधर गया? देखो यहाँ पर, देखो P and F आंसर है, देखो. नेक्स्ट. फाइनली और मेरे लिए F है, ये T है, दोनों कैंसिल नहीं होंगे, तो आंसर क्या लिखूं बोलो? P. Wow. This is how you can remember your complement identity laws. तो again I am saying P and T कैसे याद रखें फटाफट. अभी एग्जाम में आपके पास टाइम इतना नहीं रहता है. सॉरी. तो आपको फटाफट ये लिखने को आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए कैसे राम सर ने सिखाया था आपको. अरे यार मैं बार एक ही चीज क्यों लिख रहा हूं? ओके, T कैंसल P, FF कैंसल P, नो कैंसिल F, नो कैंसिल T. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ऐसे याद रखो तो ऑटोमेटिकली आपका काम वहां खत्म हो जाएगा. Okay, so these laws will be helpful while solving problems. That's why it's important to do these laws. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते. ओके, नाउ सी, मैं कुछ सम्स करके बता दूंगा, सो आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा. क्या पूछा है? राइट द रूल्स ऑफ नेगेशन. इसका नेगेशन करना है रे, इसका नेगेशन करना है और कुछ नहीं. तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, P implies Q is logically equivalent to not of P or Q. बताया था ना मैंने? Yes, sir. चेक कर लो, कंडीशनल लॉ नीचे दिख रहा है. P Yes, sir. implies Q is logically equivalent to this. Okay, equivalent है दोनों. So come here. So how to solve this? Okay, I can this is nothing but not of, this is like P. So I think I'll write it properly. So this is like P. ए मैंने मिस्टेक किया यहाँ पर. सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया, इसको हटा दो. negation. हाँ मिस्टेक है वो. ओके, सो दिस इज लाइक P and this is like Q, and so think of this law now. So this is same as not of P or Q. Did you understand this? Yes, sir. मैंने ये लॉ अप्लाई किया. Is it okay? Yes, sir. Not of P or Q. Now, so what is the answer finally I get here? Negation Q will become Q or P. Is it okay? Yes. के अंदर आएगा become negation Q and negation P. Is it okay? Yes. ये आपका आंसर हो गया. आप चाहो तो उसको उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है
ओके ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टी क्या है हमारा, हम Commutative law. कम्यूट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. ओके तो आपको हम लोग उसको कम्यूट कर सकते हैं, और एग्जाम में ना बाजू में लॉ लिखना पड़ता है, कम्यूटेटिव लॉ, दिस लॉ, दैट लॉ, सब लिखना पड़ता है एग्जाम में। ओके तो ये सब खुद से कर सकते हैं, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम। चलो कुछ और एक ये वाला ले लेते हैं, चलो लेट्स ट्राई दिस। इसको मुझे नेगेट करना है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. So this is like your P and this is like your P. So पहले आपको पता होना चाहिए P implies Q क्या होता है। P implies Q होता है negation of P और Q। चलेगा? Yes, sir. नेगेशन अंदर जाएगा, नेगेशन बिकम्स कैंसिल हो जाएगा, तो P और नॉट ऑफ Q बचेगा। Yes, sir. यहाँ पर आएगा और विल बिकम एंड P and not of Q. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. उसके बाद किड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पर एक मिनट, कॉमन आएगा क्या? नहीं कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास एंड होना चाहिए था, तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो सकता आपका, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा होता ना किड्स, ऐसा पता है कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते अभी, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर सपोज कुछ ऐसा होता ना, फॉर एग्जांपल P, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, P और नॉट ऑफ Q एंड P और नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q, तो पता है किस क्या करता, मैंने इसको कॉमन निकाल लेता, तो पता है मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, P and not of P or not of Q. What did I do? I took this common. Did you understand this? Yes, sir. फिर ये ऐसे हो जाता अगर लेकिन यहाँ पर तो कुछ कॉमन जैसा आने, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सिंबल सेम होना चाहिए था, और दोनों सिंबल से सेम भी होगा तो भी प्रॉब्लम है, तो आई थिंक यहाँ पर हाँ हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है चलेगा। और तो पता है कि अगर सपोज ये क्वेश्चन होता, अगर ये क्वेश्चन होता तो हम इसको ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं, फिर बाद में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। पता है क्या इसका आंसर है, इफ यू रिमेंबर? चलो बता दो इसका आंसर क्या है। कम है, लुक एट दिस, कहाँ गया? हाँ यही था ना, P एंड नॉट ऑफ P। मैंने क्या बोला था, जब भी स्टेटमेंट एंड नेगेशन होता है तो मैं कैसे सोचता हूं, एंड रिप्रेजेंट्स T, तो T का नेगेशन क्या होता है? F, और रिप्रेजेंट्स F का नेगेशन क्या होता है? T। So keeping this thing in mind, now see how I will solve this part. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करने का, उसके बाद छोड़ देने का। ओके यहाँ पर देखो स्टेटमेंट है एंड नेगेशन है, मेरे लिए एंड क्या है, मेरे लिए एंड क्या है? टी, तो टी का उल्टा क्या होता है? F. टी का उल्टा होता है एफ। डू यू एग्री किड्स? Yes, sir. अब जब यहाँ आएंगे तो ये आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। Yes, sir. ये आपका एफ है और भी मेरे लिए एफ है, एफ एफ कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया? नॉट ऑफ क्यू। ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इसके लिए आपको सारे प्रॉपर्टीज याद रखने पड़ेंगे। दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगा, वो दो प्रॉपर्टी मैं आपको वापस बता रहा हूं, तो आप लोग भूलना मत। सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है वो है, एक है आइडेंटिटी लॉ और एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ। सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये दो प्रॉपर्टी है, सब याद रखना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही यूज होता है तो हमें भूलना नहीं है इसके बारे में। इज इट ओके? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। ओके लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है, क्या बोला उन्होंने? रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। विदाउट यूजिंग इफ देन, इफ देन यूज नहीं करना है आपको, आपको इफ देन यूज नहीं करना है, तो ठीक है ना, नहीं करेंगे फिर। पहले काम करते हैं, लेट्स से पी, पी क्या स्टेटमेंट है? मैन इज अ जज, है ना, मैन इज अ जज। और क्यू क्या है? मैन इज Honest. ऑनेस्ट। तो ये P implies Q स्टेटमेंट है सिंबॉलिकली, हाँ के नहीं किड्स? Yes, sir. मैंने आपको बताया था P implies Q is exactly same as not of P or Q, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So can I say, and I'll say, if man is not a judge, not
नहीं, इफ कहां से आएगा? सॉरी 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 सॉरी, इफ कहां से? And then इफ नहीं आएगा, मिस्टेक है. मैन इज नॉट अ जज, मैन इज नॉट अ जज, मैन इज नॉट अ जज, और Man is मैन इज on. ऑनेस्ट. दैट्स इट. हो गया, ये आपका हो गया. ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट ही है, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इफ देन को यूज नहीं किया. इज इट ओके? yes, sir. Yes, sir. तो इन शॉर्ट्स आपको अगर रिजल्ट्स याद होंगे, सिंबल्स याद होगी, तो आप ये सब खुद से मैनेज कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है. लिखा है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट. आपको प्रूव करके बताना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. आप ट्रूथ टेबल यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो फिर हम कुछ जुगाड़ करते हैं यहां पर. चलो सबसे पहले देखते हैं P डबल इम्प्लाइज Q क्या होता है. पहले वो मैं देखता हूं. P डबल Q इम्प्लाइज Q क्या होता है? P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. है कि नहीं किड्स? Yes, sir. ये हाँ कि नहीं किड्स? अरे पब्लिक किधर Yes, गया? sir. Yes, sir. अब P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है? नॉट ऑफ P और Q. इज इट ओके? Yes, sir. एंड Q इम्प्लाइज P का मतलब क्या होता है? नॉट ऑफ Q, नॉट ऑफ Q और P. Is it okay? Yes, sir. Now I have a task. What is the task? The task is to prove this. मुझे ये प्रूव करके बताना पड़ेगा kids. Okay? तो अगर मुझे इसको प्रूव करके बताना है ना किड्स, तो मुझे इस पे काम करना पड़ेगा. ये इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला. तो ठीक है, मैं काम करना शुरू करूंगा. ध्यान से देखो. आपने इसको एक स्टेटमेंट समझो. ओके, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करवाओ. ये ना अंदर जाएगा, इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा. तो आई कैन राइट दिस एज नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q और P. ये अंदर गया, चले गए, अंदर जा रहा है. इज इट ओके? Yes, sir. और Q एंड नॉट ऑफ Q और P. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. अच्छी बात है. अब देखो यहां पर इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हाँ के नहीं किड्स? हाँ, sir. उसके बाद देखो यहां पर भी एंड है, यहां पर भी और है. एंड और है तो डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते कि नहीं करवा सकते अपन? Yes, sir. तो करेंगे. चलो क्या आएगा पता है? नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड P. चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये चलो, ये पहला वाला पार्ट है. उसी तरह इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे. तो क्या आएगा पता है? Q एंड नेगेशन Q. इज इट ओके? Yes, sir. और Q एंड P. इज इट ओके? Yes. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था. उसके बाद ये तो वैसे का वैसे ही रखते हैं अपन, इसको हाथ नहीं लगाएंगे. बट इसको आंखें फाड़ फाड़ के देखो, बोलो ये क्या है? ये हुज द गाय. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. डू यू सी दिस? Yes, sir. स्टेटमेंट एंड अ नेगेशन. हाँ क्या नहीं? नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. सो हाउ टू थिंक? एंड represents P. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड represents T. तो T का ऑपोजिट क्या होता है? F. Yes. F. वेरी गुड. ऐसे मैं याद करता हूं. सिमिलरली आंखें फाड़ फाड़ के देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, बोलो क्या है ये? व्हाट इज दिस? Complementary. है ना? एंड फॉर मी represents what? P. T का ऑपोजिट F. ये जो लॉ मैंने यूज किया, इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. हाँ के नहीं? Yes, sir. एग्जाम में लिखना पड़ता है आगे आगे. ये है, ये एक स्टेटमेंट है. तो ये है और, ये है F. और फॉर मी इज F. F कैंसिल. ये था आइडेंटिटी लॉ. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. This is F and F cancelled. Finally, what is the answer? Not of P and not of Q or Q and P. चलेगा? Yes, sir. Now मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. Not of P and not of Q और P and Q. चलेगा? Yes, sir. इसको फिर मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ. इसको आगे लिखूंगा मैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है. P and Q or not of P and not of Q. Is it clear? Yes, sir. हाँ, ये मैंने प्रूव करके बता दिया विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. बोलो सर ये कैसा गंदा प्रॉब्लम है? ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं क्या? अरे आते क्या, हमेशा आते हैं. आना ही चाहिए आपको.
इसलिए आपको आइडेंटिटी ये सब लॉज सीखना है, लॉज आएगा तो ये कर पाओगे. इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूट करने का कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ऑपोजिट होना चाहिए. यहां पर और था, यहां पर एंड था, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. हाँ, ऑफ कोर्स कुछ और भी सम्स लेंगे, डोंट वरी. यहां देख लो, P और Q एंड P और नॉट ऑफ Q. चेक करो, ये P और है, P और आई कैन टेक P और कॉमन. हाँ कैन किड्स? yes, Get sir. Q and not of Q. Is it okay? Yes, sir. आंखें फाड़ फाड़ के देखो इसको. कौन है ये बताओ? Which law? Which law? Which law? Complementary law. Complementary law. And दिखता है तो मैं F लिखता हूँ. हाँ के नहीं? Yes, sir. So, FF cancel. Identity law. What is the answer? P. Okay, तो किस ऐसे सम्स हैं, तो आई थिंक आप लोग थोड़े सम्स करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाए का. थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आपको समझ जाएगा. ओके, चलो मैं आपको और एक करके बता देता हूँ, फिर स्विचिंग सर्किट्स बता दूंगा आपको. ठीक है, चलो. क्या लिखा है आपका? देखो ये दोनों जगह पे और है. देखो देखो, यहां भी और है और यहां भी और है. ओके, तो अगर देखो P और Q और R होता है ना, यू कैन राइट दिस एज P और Q और R, और यू कैन राइट दिस एज P और Q और R. इज इट ओके? पैकेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक जगह और है और एक जगह एंड है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ. क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है. कुछ अच्छा लग रहा है आपको? Yes, sir. तो Q एंड common. Q कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा बताओ? P और नॉट ऑफ P. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, हु इज दिस गाय? विच लॉ आई विल Complementary law. कॉम्प्लीमेंट्री लॉ. और दिखा तो F का ऑपोजिट T. हाँ के नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट, T कैंसिल. एग्जाम में से कैंसिल मत करना, डायरेक्टली लिखना. इज इट ओके? Yes, sir. Now this Q will go inside, becomes Q or P and Q or not of Q. Is it okay? Yes, sir. ये कौन सा लॉ है बताओ, इसका आंसर क्या है? And complementary. Complementary. Again यहाँ पर आ जाएगा T cancel. What is the answer? Q or P. So you get the answer as P or Q. Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. तो ये सब वैसे ही है. उसके बाद किड्स कम्स द स्विचिंग सर्किट्स. आई थिंक ये तो आपने काफी फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत किया होगा. ओके, तो वो टाइम पास ही है, लॉजिक गेट जैसा. आपको पता होना चाहिए स्विचेस इन सीरीज क्या होते हैं, स्विचेस इन पैरेलल क्या होते हैं. यहाँ पर दोनों स्विच सीरीज में है ना कि नहीं? Yes, sir. Sir. तो करंट पास कब होगा? when will the current pass? When both switches are short. switches हाँ, need to be तो closed. दोनों स्विचेस बंद होंगे तब जाके आपका लाइट चालू होगा. आंखें नहीं? Yes, sir. अरे आंखें नहीं? Yes, sir. So switches in series. तो switch in series का symbolic representation है P and Q. हाँ के नहीं? When will the light on? When both are passing. So T becomes T. हाँ के नहीं? Yes, sir. T will become T. Otherwise it is F. हाँ के नहीं? Yes, sir. कोई भी एक स्विच अगर ओपन होगा तो लाइट जलने वाली नहीं है. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. And normally what happens, we do this. We write something like P. Let P is equal to switch S1 is open. या closed. Switch S1 is closed. Q is switch S2 is closed. तो मैंने इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, तो इसका symbolic representation क्या हो गया? P and Q. Q. Is it okay? Yes, sir. Similarly, ये आपके सामने जो दिख रहा है इसको बोलते हैं switches in Parallel. parallel. बत्ती कब जलेगी बोलो? When anyone is shut. हाँ, तो अगर कोई भी एक रहेगा चालू तो बंद रहेगा तो आपका लाइट चालू हो जाएगा. हाँ के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके लिए, लेकिन अगर दोनों खुले हैं, दोनों ओपन है तो लाइट चालू नहीं होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. So that's what it is like. or P or Q. हाँ के नहीं? Yes. F becomes F, otherwise it is T. Is it okay? Yes. Yes. चलो अच्छी बात है. Okay, now they are telling you express the following circuit in symbolic form. Write the input output table. अरे input output table मतलब logical table है, जो हम लोग truth table बनाते थे ना,
Yes, That is the input. वो मैं करने वाला नहीं हूं, मैं वो तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है. इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं. लेट्स से सिंबॉलिकली. एग्जाम में कैसे करने का देखो, मैं पहला वाला कर रहा हूं. लेट P Q R switch S1 is closed, S2 is closed, S3 is closed. तो इसका सिंबॉलिक अपने पता है क्या होगा? इट विल बी P, ये पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में है, Q and R. Did you understand? yes, sir. Yes. Okay. S dash मतलब क्या होता है? S dash मतलब क्या होगा पता है? S1 is open है ना, Yes, sir. तो नेगेशन ऑफ P. तो S dash, तो नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या हो जाता है? स्विच S1 is open. Is it okay? Yes. Yes, तो इसका सिंबॉलिक क्या होगा? नॉट ऑफ P and Q और P and not of Q. Is it okay? yes, sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. तो ये सब आप लोग आसानी से कर सकते हो, तो कुछ बड़ी बात नहीं है सब चीजों में. ओके, तो कुछ हम कुछ भारी भरकम सम लेते हैं. कुछ बड़ा सम है क्या? कुछ बड़े सम नहीं है तो ठीक है, ये वाला ले लो यार. कुछ चलिए पहला फिफ्थ वाला ले लेते हैं. क्या आएगा पता है? S1 को P बोलते हो, तो P और ये दोनों सीरीज में है, तो क्या लिखूं? नॉट ऑफ P and not of Q. Did you get me? Yes, Yes, sir. और ये पूरा का पूरा पैरेलल में आके नहीं, Yes, sir. Yes, sir. और ये दोनों सीरीज में है, तो P and Q. Did you understand? Yes, sir. तो can you try all these sums now then? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट बोला है स्विचिंग सर्किट बनाना है, तो चलो मैं एक दो बना के बता देता हूं. अभी उल्टा है, स्विचिंग सर्किट बनाना है. लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन. तो नेगेशन P और ये सीरीज एंड है, एंड तो मतलब सीरीज में आ जाएगा. उसके बाद ये पैरेलल में है, ये भी दोनों सीरीज में आ जाएगा. और फिर हम यहां पर लाइट जला देंगे. ओके, तो चेक कर लो. नेगेशन P का मतलब होता है, नेगेशन मतलब होता है S1 डैश. इज इट ओके? Yes, sir. Q का मतलब होता है S2. इज इट ओके? Yes, sir. This is S1 and this will be S3 S3 dash. Is it okay? Yes, sir. ये ठीक है ना? Yes, sir. सिंबॉलिकली करना है तो कुछ है, बड़ी बात नहीं है. चलो लेट्स ट्राई, कुछ बड़ा वाला ट्राई करते हैं. पहले ये तीनों पैरेलल में, चेक कर लो, ये तीनों पैरेलल में है. इज इट ओके? Yes, sir. और फिर क्या पता है, ये इसके साथ पैरेलल में है, P इसके साथ पैरेलल, ये पैरेलल में आ जाएगा. फिर P आएगा, P है वो उसके, इन दोनों के साथ सीरीज में है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है. समझा क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. और आगे आई थिंक ये आपने कभी फिजिक्स में सब किया होगा ना, Yes, sir. sir. तो फिर मैं क्यों सिखा रहा आपको. ठीक है, चलो ठीक है. तो P आपका S1 है, नॉट ऑफ Q विल बी S2 का डैश, दिस इज S3. P आपका S1 है, ये आपका हो जाएगा S2 का डैश, और ये हो जाएगा S3 का डैश. आई होप ये क्लियर है किड्स? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. ठीक है, so I think we all have understood, right kids? Yes, sir. आगे लिखा है next, read the next question. Give an alternative equivalent simplified circuits. Alternative चाहिए उनको दूसरा, तो ठीक है काम करते हैं. Let's write it symbolically. क्या आएगा पता है? P and not of P or Q. Did you understand? Yes, sir. Can we simplify this? Can we simplify this? Yes, sir. Yes, sir. Distributor. Definitely will simplify. P and not of P और P and Q चलेगा. Yes, sir. आंखें फाड़ फाड़ के देखो क्या दिख रहा है. Complementary law. हाँ, तो ये F आ जाएगा, चलेगा. Yes, sir. FF कैंसल, क्या आया? P and Q. So the simplified is nothing but S1 and S2 in series. आंखें नहीं, the simplified circuit. Yes, sir. Yes, sir. S1 and S2.
ये आपका सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। तो कुछ नहीं यार, यही सब आप लॉज अप्लाई करो यार तो सब कुछ सिंप्लीफाई कर लोगे और कुछ नहीं यार। यहाँ पर भी क्या है, राइट अ सिंबॉलिक फॉर्म एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। ठीक है, तो मैं आपको ये भी करके बता देता हूँ। चल मैं सेकंड वाला लेता हूँ। ओके चलो मैं ये वाला भी ले लेता हूँ। चलो क्या आएगा पता है, पी सॉरी पी एंड क्यू और आर, ये पूरा का पूरा हो गया पैरेलल। S3 का डैश मतलब नेगेशन ऑफ R एंड S2 का डैश नेगेशन ऑफ Q एंड P। इज इट ओके? Yes, sir. अब ना थोड़ा लेट्स डू सम वर्क। व्हाट वर्क? लेट्स सी। सबसे पहले डोंट यू थिंक आई कैन राइट दिस एज, आई कैन राइट दिस, ये सब एंडी है ना, तो आई कैन राइट P ओके देखो हाँ, देयर आर मेनी वेज, आई जस्ट राइट वन बाय वन सो दैट यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले फ्रॉम दीज टू गाइज आई कैन टेक नेगेशन कॉमन, सो आई गेट R और Q। इज इट ओके? Yes, sir. अभी ये दोनों स्टेटमेंट हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं ना, है ना, कम्यूटेटिव। Yes, sir. P and negation of R और Q. Is it okay? Yes, sir. ये P and Q और R है, ठीक है? Yes, sir. ओके ठीक है। अब एक काम करूंगा मैं किड्स, मैं इस P को कॉमन निकाल लूंगा, तो I'll get here Q और R और negation of ये Q और R लिख देता हूँ। Is it okay? Yes, sir. Now check this out kids, check this out. Statement or not a statement, इसका Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री है, तो और दिखता है तो मैं क्या सोचता हूँ? All. फॉल्स। फॉल्स का ऑपोजिट क्या होता है? True. टी। समझा क्या? Yes, sir. Yes. ये एंड टी कैंसिल, तो व्हाट इज आंसर? एंड टी इज अ सिंपलीफाइड स्टेटमेंट। इज इट ओके? Yes, sir. इसका सिंपलीफाइड सर्किट कितना चिंटू सा है, एकदम चिंटू सा सिंपलीफाइड सर्किट है। Isn't that true? Yes, sir. Master. हो गया। तो वही है, सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको समझ ही जाएगा। तो आई थिंक अभी ये खुद से कर सकते हैं। ऑब्टेन द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट। कैन यू ड्रॉ द स्विचिंग सर्किट्स नाउ? Yes, sir. तो सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं, स्विचिंग ऑफ द लीस्ट मतलब स्विच बनाना, सिंपल वाला बनाना, एकदम सिंपल वाला ना। ओके हाँ या तो खुद से कर सकते हैं। बस ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। रिमेंबर दीज स्मॉल थिंग्स। क्या टेबल ठीक से याद कर लेना आप लोग, नेगेशन याद कर लेना, ट्रूथ टेबल याद कर लेना, बाद में टोटोलॉजी टी, एफ इज कॉन्ट्रडिक्शन, अगर मिक्सचर होगा तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी, इसको बोलता है फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, एप्सिलॉन का उल्टा को बोलते हैं फॉर सम या देयर एग्जिस्ट, हाँ कि नहीं किड्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। उसके बाद ये सारे लॉज आप अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. और आपको पता होना चाहिए कॉन्वर्स क्या है, इनवर्स क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. बस सर हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. बस ये सब टेक्स्ट बुक से ही था। ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। एक मिनट रुको। हाँ अब क्वेश्चन, ये बोर्ड्स के लिए जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेस है वो इम्पोर्टेंट है कि फिर? एक मिनट रुक।